हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस क्लासेस। एसएस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सेट्स के रिलेशंस के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। उसके रिगार्डिंग प्रीवियस वीडियो में हम लोग रिलेशन क्या है, डोमेन एंड रेंज क्या है, इसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोगों ने ये डिस्कस करना है कि नल रिलेशन क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, देन इनवर्स रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, कांस्टेंट रिलेशन और इक्वलिटी ऑफ रिलेशंस, इस रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया था, ए और बी दो सेट का एग्जांपल लिया था, जिसमें ए का एलिमेंट था 1 2 3 और बी का एलिमेंट था ए बी सी। और हम लोग को पता है कि अगर ए क्रॉस बी हम लोग निकालते हैं तो हम लोग को टोटल 9 एलिमेंट्स मिलेगा, जो कि होगा 1 ए 1 बी 1 सी 2 ए 2 बी 2 सी 3 ए 3 बी 3 सी। इस तरह के हम लोग टोटल 9 एलिमेंट्स रहेगा। और ये ए क्रॉस बी का कोई भी एक अगर सबसेट होगा तो वो सबसेट क्या होगा, ए से बी तक का एक रिलेशन होगा, है ना। इफ यू टेक एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दैट विल बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ओके, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन फ्रॉम द सेट ए टू बी। ये हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा है। मान लीजिए हम एक रिलेशन लिया है आर, जो कि है 1a 2b 3c। first of all you have to understand how to check whether this set is a relation from A to B or not. If I ask you whether this will be a relation or not, you have to check whether these elements of the relation of the set are. I cannot say whether it will be a relation or not, but this is a set, and the elements are the those elements which should be present in the set across B. If these elements are also elements of the set across B, then I can say that this set is a subset of the set across B, and in that case this set R will be a relation from A to B. जस्ट चेक करना है हमको, क्या ये जो एलिमेंट्स है ये across B में है। 1a 2b 3c 1a 2b 3c। yes, we have all these three elements in the set across B. तो R जो हो गया ये क्या है, R एक सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। R अगर एक क्रॉस B का एक सबसेट है, यानी कि R क्या है, एक रिलेशन है। R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। R को हम लोग क्या कहेगा, एक रिलेशन कहेगा। R will be a relation from A to B if R is a subset of A cross B. तो इसके पहले हम लोग क्या डिस्कस किया था, ये जो R अगर रिलेशन है, now it is a relation. Okay, now it is a relation from A to B, and the domain of the relation R will be written as this, small d for domain, in bracket you have to represent the relation R. If it is R1, then you have to mention here R1, or whatever may be the relation. If you are going to find the domain, then you have to put d, small d, in front of it. It will represent domain of the relation. Now what is domain of the relation? You see, domain of the relation is a set again, where the first component of the relation in the order pair of the in the relation will be coming here. You see, what are the first component in the order pair? The elements are 1a 2b 3c. Now this first component 1 2 3 are 1 2 3 are the elements of the domain. So domain is just a set. Okay, it is not cross product of two set. It is the set where the first component of the relation or the order pair in the relation. And if I say what will be the range, then range is the set where the second component of the relations will be coming as an element, right? So what are the second components? A, B and C. A, comma, B, comma, C. You see, this is the set, is the range of the relation R, and this is the set which is domain of the relation R. So domain में क्या आता है, R relation में। ये relation कुछ भी हो सकता है, any relation you can take, but it will be a subset of A cross B only. A cross B का ही एक क्या होगा, वो subset होगा, यानी कि जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे रहेगा वो A cross B से ही आएगा। ठीक है, तो ये जो भी यहाँ पे रिलेशन रहेगा उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है ना, ये ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट को लेके अगर हम लोग एक सेट में लिखेंगे तो ये क्या होगा, डोमेन होगा, वो रिलेशन का डोमेन कहलाएगा। और जो सेकंड कंपोनेंट मिलके जो सेट होगा उसको हम लोग रेंज कहेगा। ठीक है ना, रेंज सेकंड सेट से आता है, डोमेन फर्स्ट कंपोनेंट से आता है। ठीक है,
तो इसमें हम लोग अगर देखते हैं तो डोमेन जो है ये सेट का क्या है, ए सेट का बराबर हो गया, और आर जो रेंज है ये बी सेट का बराबर है, इजंट इट? सो डोमेन कैसे निकाला जाता है और रेंज क्या होता है, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। आज हम लोगों ने शॉर्टकट में इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लिया। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नाल रिलेशन क्या है। तो अभी हम लोग का जो यहाँ पे ए सेट था, ये ए और बी दोनों सेट क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें से कोई भी एक सेट एम्प्टी नहीं है। मान लेते हैं एक सेट ए है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है, और बी एक सेट है जो कि एक एम्प्टी सेट है, यानी कि नो एलिमेंट इज देयर। अगर ए और बी दो सेट है जिसमें से ए एक नॉन एम्प्टी सेट है बट बी एक एम्प्टी सेट है, यहाँ पे बी क्या है, एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट यानी जिसका कोई भी एलिमेंट्स ना हो। तो अगर हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए क्रॉस बी में क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसमें भी क्या होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर एक भी एलिमेंट होता तो यहाँ पे हम लोग को 3 एलिमेंट एटलीस्ट मिलता, लेकिन यहाँ पे एक भी एलिमेंट है नहीं। तो नंबर ऑफ जो है ए क्रॉस बी, ये क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ ए में तो 3 एलिमेंट्स है, लेकिन बी में कितना एलिमेंट्स है, कोई भी एलिमेंट्स नहीं, यानी कि 0 एलिमेंट्स है। तो 3 इंटू 0 मतलब 0। ए क्रॉस बी में कोई भी एलिमेंट्स ही नहीं आएगा, यानी कि ए क्रॉस बी भी क्या होगा, एक नॉन सेट होगा। और इसी तरह से अगर हम लोग बी क्रॉस ए निकालेंगे तो बी क्रॉस ए भी क्या होगा, एक नॉन सेट होगा। अब आपको पता है कि ए क्रॉस बी में तो नॉन सेट है, लेकिन अभी फाई जो है ना, नॉन सेट जो है, ये हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो अगर हम लोग पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी लिखेंगे, पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी में क्या आएगा, एक नॉन सेट आएगा। ठीक है, ये पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी है जिसमें एक एटलीस्ट एक एलिमेंट रहेगा, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी, ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 टू द पावर ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी। हर एक सेट का पावर सेट का कितना एलिमेंट्स आएगा, पावर सेट में कितना एलिमेंट आएगा वो डिफाइन करेगा 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। अभी पावर ऑफ सेट ऑफ ए क्रॉस बी है तो 2 टू द पावर ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी। अब 2 टू द पावर ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी कितना है, ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी का ऑर्डर मतलब कितना एलिमेंट्स है ए क्रॉस बी में, 0 है, तो 2 टू द पावर 0 यानी कि 1, एटलीस्ट एक एलिमेंट रहेगा इसका सबसेट में, और वो एलिमेंट क्या होगा, वो होगा नल सेट, यानी कि एक एम्प्टी सेट फाई। तो ये जो रिलेशन है फाई, ये रिलेशन है कहां से कहां तक, R इज इक्वल टू ए रिलेशन फाई। ओके, R एक क्या होगा, रिलेशन होगा ये फ्रॉम ए टू बी, जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, वही रिलेशन है। R एक रिलेशन है, क्यों, R एक बी ए क्रॉस बी का क्या है, एक सबसेट है। R इज ऑल्सो null set. A cross B is a null set. B cross A is also a null set. ठीक है, तो ये जो null set है R, क्या ये A cross B का एक सबसेट है? Yes, because these both sets are what? Same null set. That means this R is a relation from A to B. Because any subset of A cross B is a relation from A to B. Since R is a subset of the set A cross B, तो R क्या होगा, एक रिलेशन होगा। लेकिन सिंस ये रिलेशन में कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो इस रिलेशन को हम लोग क्या कहेगा, null रिलेशन कहेगा। दिस रिलेशन इज सेड टू बी ए null रिलेशन। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द definition or what is the concept of null relation. If any of the two set is a null set, then in A cross B you will get a null set. There will be no element in the set A cross B or B cross A, because the one set is an empty set here. So in this case R will be a null set if R is a null set and this null set is a subset of A cross B. ये जो null set है ना, ये A cross B का क्या है, एक सबसेट है, क्योंकि दोनों सेट बराबर है। हर एक बराबर सेट क्या होता है, एक दूसरे का सबसेट होता है, क्योंकि ये भी null set है, ये भी null set है, दोनों सेट क्या है, बराबर है, इक्वल है। Since these two sets are equal, that means they are subset of each other. Because एक दो सेट कब इक्वल होता है, अगर एक दोनों सेट एक दूसरे का सबसेट होता है। तो यहाँ पे A क्रॉस B R का सबसेट है, R A क्रॉस B का सबसेट है। R A क्रॉस B का सबसेट है, यानी कि R एक रिलेशन है A से B तक। बिकॉज रिलेशन का डेफिनेशन क्या कहता है, एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B. Okay, now since R is also a subset of A cross B, therefore by definition of relation हम लोग
कह सकते हैं कि आर क्या है, ए से बी तक का एक रिलेशन है। आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। लेकिन ये जो रिलेशन है इसमें कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है। ये रिलेशन क्या है, एक नल सेट है, यानी कि कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, जिसके कारण हम लोग इसको क्या कहेगा, ये रिलेशन तो है लेकिन ये किस तरह का रिलेशन है, ये एक नल रिलेशन है। तो नल रिलेशन क्या होगा, अगर कोई भी सेट्स में से अगर दो सेट्स का अगर हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं तो उसमें से अगर कोई भी एक सेट अगर एम्प्टी सेट होगा तो उसमें से हम लोग को दो सेट मिलेगा। एक तो होगा वो क्या होगा, आर, जो कि होगा नल रिलेशन। और क्योंकि हम लोग का ए क्रॉस बी का एलिमेंट्स सिर्फ 0 है तो इसका पावर सेट में क्या आएगा, एक एलिमेंट्स आएगा, यानी कि ए क्रॉस बी का सिर्फ एक ही सबसेट होगा, क्योंकि जितना सबसेट है उतना ही उसका रिलेशन होता है। अब ए क्रॉस बी में कितना है, 0 है, यानी 2 टू द पावर 0 इक्वल टू 1 है। 2 टू द पावर 0 इक्वल टू 1 यानी कि इसका पावर सेट में सिर्फ एक ही क्या आएगा, एलिमेंट आएगा, जो कि एक नल सेट होगा 5। तो इसके लिए हम लोग को कितना मिलेगा, मैक्सिमम रिलेशन, एक रिलेशन मिलेगा जो एक नल रिलेशन होगा। ठीक है, अभी मान लेते हैं हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज, प्रीवियस एग्जांपल में चले जाते हैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम लोग एक रिलेशन लिखते हैं आर, जिसका एलिमेंट होगा जिसका एलिमेंट क्या होगा, 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c। ये अगर हम लोग रिलेशन लेते हैं तो इस रिलेशन को आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिए, क्या ये एक रिलेशन है। पहले तो हम लोग को ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या ये एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। अगर ये रिलेशन होगा तो क्या होना पड़ेगा, ये ए क्रॉस बी का एक सबसेट होना पड़ेगा, यानी आर में जो भी एलिमेंट्स है वो ए क्रॉस बी में होना पड़ेगा। तो क्या 1a ए क्रॉस बी में है, यस। 1b है, 1c है, 2a 2b 2c 2a 2b 2c ये भी ए क्रॉस बी में है, 3a 3b 3c 3a 3b 3c ये भी ए क्रॉस बी में है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि R क्या है, ए क्रॉस बी का एक सबसेट है, और इसीलिए R को हम लोग ए से बी तक का एक रिलेशन कह सकते हैं। सो हियर R इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब ये जो रिलेशन है ना, इस रिलेशन में एक खास बात है। ये बात क्या है कि ए क्रॉस बी में जो भी एलिमेंट्स है ना, ये हर एक एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। यानी ए क्रॉस बी का अगर आप कोई भी सबसेट निकालेंगे ना, यानी कि जो भी रिलेशंस आएगा, ए क्रॉस बी का हम लोग को कितना रिलेशंस मिलेगा, 2 टू द पावर 9 2 टू द पावर 9 यानी कि 512 डिफरेंट रिलेशन हम लोग निकल सकता है। यहाँ पे ए क्रॉस बी से ए से बी तक का हम लोग को टोटल 512 रिलेशंस मिलेगा, और वो जो भी रिलेशंस होगा ना उसका एलिमेंट्स ये रिलेशंस का ही एक सबसेट होगा, ये रिलेशंस का ही एक सबसेट होगा। हम अभी ये नहीं बोल रहे कि ये ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये एक रिलेशंस है। ये ए क्रॉस बी का कितना होगा, टोटल 512 रिलेशंस होगा, और वो हर एक रिलेशन क्या होगा, ये आर रिलेशन का एक एक सबसेट होगा। यानी कि जो भी रिलेशन में हम लोग को 512 रिलेशंस में से 511 रिलेशंस हम लोग को मिलेगा, एक तो मिलेगा नल रिलेशन, ठीक है, एक तो है नल रिलेशन जो इसको एक एम्प्टी सेट हम लोग कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे 510 हम लोग को डिफरेंट रिलेशंस मिलेगा, जहां पे एटलीस्ट वन एलिमेंट रहेगा। तो वो रिलेशन जो भी होगा ना, उसका एलिमेंट क्या होगा, यही रिलेशंस का ही होगा। यानी कि ये जो रिलेशंस है ना, ये रिलेशन एक यूनिवर्सल रिलेशन का तरफ से काम करेगा। ये जो रिलेशन है ये एक यूनिवर्सल रिलेशन होगा। क्यों, क्योंकि इसके अलावा जो भी रिलेशंस आएगा उसके एलिमेंट्स ये रिलेशंस का ही सबसेट होगा। जैसे अब यूनिवर्सल सेट हम लोग किसे कहते थे, मान लीजिए अगर हम लोग एक सेट लिखा है, मान लीजिए हम यू लिखा है, यानी कि एन लिख दिया, से 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ये मेरा नेचुरल नंबर का सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। देन इफ यू टेक एनी सेट ए वेयर 1, 2, 3, 4, और यू कैन से बी and is another set 1, 3, 5, 7 dot dot dot. So any set you take where the elements are some natural numbers, it will be a subset of this set. In this case we call this set as a universal set, right? Universal set. So in the same case here in the set R also,
if you take the any relations from A to B other than the null relations and the relation R itself, then you will be knowing that the elements are from the relation R only, because every relation will be a subset of this relation R. That is why this relation is called the universal relation. I hope it is clear to you. If it is not clear to you, then you can ask me the doubt. Okay, where you are having doubt, you can ask me. I will try to clarify it. Okay, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं. जो भी डाउट है वो हम लोग क्लियरिफाई करने के लिए फिर से ट्राई करेंगे. ठीक है, तो मैंने क्या कहा है कि आर जो ये रिलेशन है ना, एक्चुअली ये क्या है, ये across B ही है. I can say this relation is nothing but the set across B only, because every elements in this set in this relation are the elements in the set across B. So this relation which is equal to the set across B is said to be the universal relation. तो अगर एक क्वेश्चन आएगा आप लोग को कि यूनिवर्सल रिलेशन लिखिए, देन आप लोग यूनिवर्सल रिलेशन लिख पाएंगे, इतना मुझे उम्मीद है ना. अगर ऐसे भी तक का यूनिवर्सल रिलेशन पूछा गया, मान लीजिए यही क्वेश्चन है, राइट द यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन यू जस्ट राइट एज द एलिमेंट्स ऑफ across B only. The set across B itself is the universal relation. ओके, क्योंकि 512 रिलेशंस में से एक हो जाएगा नल रिलेशंस और एक रिलेशन हो जाएगा across B खुद. क्योंकि पावर सेट में क्या आता है, पावर सेट में आप लोग को पता है कि ए सेट का जो भी एलिमेंट्स है वो हर एक आता है, फिर जो सेट ए होता है ना वो खुद भी एक एलिमेंट बन के आता है. तो यही जो ये एलिमेंट होगा ना, यही एलिमेंट को हम लोग क्या कहेगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ए क्रॉस बी का अगर पावर सेट निकलता है, यहाँ पे ए क्रॉस बी का पावर सेट में क्या क्या आएगा, ए क्रॉस बी का पावर सेट में आएगा हम लोग को 5 तो एक मिलेगा ही, देन 1 ए का एक सिंगल रिलेशन, इस तरह से हम लोग को 512 मिलेगा. देन 2 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स, इस तरह से अगर हम लेते जाएंगे, लास्ट में क्या आएगा, ए क्रॉस बी जो सेट है ना, ये खुद सेट, ये खुद भी एक आएगा लास्ट में. ठीक है, तो ये सेट को हम लोग क्या कहेगा, ये जो रिलेशन है ना, बिकॉज एवरी एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ across B, पावर सेट ऑफ across B में जो भी एलिमेंट आ रहा है ना, ये हर एक एलिमेंट क्या है, एक एक सेट है जो कि एक रिलेशन है ए से बी तक का. ये पावर सेट ऑफ across B के लिए तो ये एक एलिमेंट है, लेकिन ये एलिमेंट क्या समझाता है, ए से बी तक का एक रिलेशन. तो हर एक एलिमेंट क्या है, एक एक रिलेशन है ए से बी तक. इसी तरह ए क्रॉस बी भी क्या है, एक रिलेशन रहेगा ए से बी तक का, और यही रिलेशन को हम लोग क्या कहेगा, यूनिवर्सल रिलेशन. अगर आप लोग को समझ में आया तो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जाते हैं, जहां पे है इनवर्स रिलेशन. तो मान लीजिए हमने एक रिलेशन लिया है, मान लीजिए हमने एक रिलेशन लिखा है आर, जिसका एलिमेंट है 1a, देन 2b, देन 3c, ओके, और 3a. ये मेरा एक रिलेशन है. क्या ये रिलेशन है, ये बिकॉज ऑल दीज एलिमेंट्स आर present in the set across B, that means R is a subset of across B, so it is a relation from A to B. Now my question is, what will be the inverse of this relation, which will be denoting by this symbol R inverse. It's called inverse relation of the set R. R set के inverse relation में क्या आएगा, ये हर एक एलिमेंट जो है ये आएगा यहाँ पे, लेकिन ये ऑपोजिट होके आएगा, यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड में चला जाएगा और सेकंड कंपोनेंट वाला फर्स्ट में आ जाएगा. यानी 1a था तो ये a1 बन जाएगा. ठीक है, देन ये 2b था तो ये b2 बन जाएगा, यानी सेकंड वाला फर्स्ट में आ जाएगा, फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड बन जाएगा. 3c था तो ये क्या हो जाएगा, c3 हो जाएगा. 3a था तो ये a3 हो जाएगा, है ना. तो ये जो मेरा रिलेशन है, इसको हम लोग क्या कहेगा, r का इनवर्स कहेगा, इनवर्स रिलेशन ऑफ द रिलेशन r. इनवर्स रिलेशन निकालना बहुत आसान है. जो भी रिलेशन दिया जाएगा वो हर एक ऑर्डर पेयर को बस आपको उल्टा करके लिखना है, इनवर्स कर देना है. 1a है तो a1 होगा, a1 होगा तो क्या होगा, 1a हो जाएगा. r इनवर्स का अगर हम लोग फिर से इनवर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर ये क्या होगा, r का बराबर होगा, यानी इसका एलिमेंट क्या रहेगा, फिर से 1a आ जाएगा, 2b आ जाएगा, 3c आ जाएगा और 3a आ जाएगा. इस तरह से हम लोग अगर निकालते जाएंगे तो ये मिलते रहेगा. ओके, तो ये जो इनवर्स है, ये अगर इवेंट टाइम में रहा तो ये r का बराबर होगा, ऑड टाइम में रहा तो ये r इनवर्स का बराबर होगा. ठीक है ना. ओके, इसके अलावा अभी कोई भी अगर रिलेशन रहेगा तो बस इसको कंपोनेंट को उल्टा कर देने से हम लोग को क्या मिलेगा, उस सेट का, उस रिलेशन का इनवर्स रिलेशन हम लोग को मिलेगा. ठीक है. नाउ माय क्वेश्चन इज, ये जो रिलेशन था
आर का डोमेन क्या होगा, आर का डोमेन होगा 1 2 3 और रेंज, आर रिलेशन का रेंज क्या होगा, रेंज होगा ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी। अभी आर इनवर्स का डोमेन क्या होगा, आर इनवर्स जो है, आर इनवर्स का डोमेन क्या आएगा, ए बी सी, ए कॉमा आर इनवर्स का डोमेन क्या आएगा, डोमेन यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट, जो भी एलिमेंट्स है उसका फर्स्ट कंपोनेंट, ए बी सी, ए फिर से लिखने का जरूरत नहीं है, ए कॉमा बी कॉमा सी। फिर रेंज ऑफ रिलेशन, आर इनवर्स क्या आएगा, आर इनवर्स का रेंज क्या होगा, सेकंड कंपोनेंट 1 कॉमा 2 कॉमा 3। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये जो डोमेन ऑफ द सेट रिलेशन आर है वो क्या है, रेंज ऑफ आर इनवर्स का बराबर है ना, बराबर यानी सेम एलिमेंट से तो बराबर होगा, यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन आर इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स। एंड उसी तरह से रेंज ऑफ जो आर होगा ये डोमेन ऑफ आर इनवर्स का बराबर होगा। तो ये जो है ये आप लोग को याद रखना है, सॉरी ये आप लोग को याद रखना है हमेशा के लिए कि कोई भी एक रिलेशन का डोमेन जो होगा उसका जो इनवर्स रिलेशन होगा उसका रेंज का बराबर होगा, और कोई भी एक रिलेशन का रेंज जो होगा उसका इनवर्स रिलेशन का डोमेन का बराबर होगा। तो ये बात आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सीख लिया, ओके। तो अगर हम लोग इस तरह से लिखते हैं आर 1a 2b, तो इसका डोमेन क्या होगा, इन दिस केस डोमेन विल बी 1 and 2, 1 and 2, the set 1 2 and range of the relation R will be equal to a comma b, sorry it is a set only। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखा है हम लोगों ने, ये जो डोमेन है ये रिलेशन का डोमेन क्या है, ए का एक सबसेट है। क्या ये इक्वल टू ए है, नो इट इज नॉट इक्वल टू ए, ए सेट का बराबर नहीं क्योंकि ए में 1 2 3 है, यहाँ पे सी 1 2 है, यानी कि जो डोमेन है ये क्या होगा, ए सेट का एक सबसेट होगा और रेंज जो है ये बी सेट का एक सबसेट होगा, ठीक है ना। इफ आर इज ए रिलेशन, if R is a relation from A to B, if R is a relation from A to B, then domain of ये कैपिटल R है, if R is a relation from A to B, then domain of R ये क्या होगा, A का सबसेट होगा और रेंज ऑफ जो R होगा ये B सेट का सबसेट होगा। ये आपको भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना। ये छोटा छोटा बात है जो आपको जानकारी होना चाहिए कि एक रिलेशन का जो, ये रिलेशन कौन सा सेट में से है, अगर ए से बी तक का है तो डोमेन जो होगा वो हमेशा ए से आएगा, यानी ए का एक सबसेट होगा और रेंज जो होगा वो बी का सबसेट होगा, ठीक है। अगर ये सेट खुद ए से ए तक का है तो ये दोनों जो क्या होगा, सबसेट ऑफ ए का ही होगा, ठीक है। डोमेन और रेंज दोनों दो भी होगा, ए का सबसेट होगा। तो ये बात जो है हम लोग को ये जानकारी होना चाहिए। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा है, आर देखा है, इसका इनवर्स क्या होगा एक बार फटाफट कर लेते हैं। इसका इनवर्स होगा a1 और b2। ये जो रिलेशन आर इनवर्स है ये क्या है, आर का इनवर्स रिलेशन, ठीक है। इस तरह से इनवर्स रिलेशन निकालता है, कैसे, जो भी एलिमेंट है इसको उल्टा कर देना है, फर्स्ट को सेकंड में लिखना है, सेकंड को फर्स्ट में, b2b था तो b2 हो गया, 1a था तो a1 हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग कोई भी रिलेशन का इनवर्स रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग इसी तरह से करेंगे। इसके बाद हम लोग को मिला है आइडेंटिटी रिलेशन। ये एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, आर को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन कहेगा और इसको हम लोग मेनली जनरली इसको आई से लिखते हैं, ठीक है। और ये हमेशा एक सेट के लिए होगा। मान लीजिए आई ए है, आई ए और आई बी, ये सेम सेट का ऊपर में होता है, ए सेट से ए तक का आइडेंटिटी रिलेशन होगा। आइडेंटिटी रिलेशन में कौन सा एलिमेंट्स आएगा यहाँ पे, सिंस ये ए से ए तक का है, यानी कि ये जो भी होगा ए क्रॉस ए का क्या आएगा, सबसेट होगा। तो ये जो आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ ए है, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए है, तो इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा, ए क्रॉस ए का वही एलिमेंट आएगा जो एलिमेंट में फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट दोनों बराबर है। यानी कि ये आई में क्या आएगा, आई ऑफ ए इज एक्स वाई such that x is equal to y, x y belongs to a, ठीक है। दोनों यही ऑर्डर पेयर आएगा जहां पे दोनों ऑर्डर पेयर क्या है,
फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट बराबर है, एक्स एंड वाई इक्वल है, यानी ये सब दोनों क्या होगा, बराबर आना पड़ेगा। ठीक है, तो ए में क्या एलिमेंट्स है, ऑल द एलिमेंट्स फॉर ऑल, यहाँ पे फॉर ऑल आएगा। ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एनी कोई भी एलिमेंट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे एक्स एक्स आएगा, इस तरह से हम लोग लिख सकता है, या तो एक्स वाई लिखेगा, नहीं तो हम लोग इस तरह से लिख सकता है, और यहाँ पे जो आएगा फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट बराबर रहेगा, such that for all x belongs to a। ए में जितना भी एलिमेंट्स रहेगा उसका बराबर एलिमेंट्स क्या होगा, 1 है तो 1 1 आएगा, 2 है तो 2 2 आएगा, 3 है तो 3 3 आएगा। इतना ये जो सेट रिलेशन है ना, ये रिलेशन को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन कहेगा। आइडेंटिटी रिलेशन ऑन द सेट ए एंड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन द सेट बी में क्या आएगा, बी सेट में क्या एलिमेंट्स है, ए है तो यहाँ पे ए आएगा, ऑर्डर पेयर जिसमें ए आएगा। ठीक, इसी तरह से वो ऑर्डर पेयर आएगा, यहाँ पे क्या एलिमेंट्स है, और बी है तो बी आएगा, सी है तो सी भी आएगा। अगर यहाँ पे और भी कुछ एलिमेंट होता तो उसका भी सेम एलिमेंट आता। मान लीजिए यहाँ पे एक एलिमेंट है डी, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी का भी ऑर्डर पेयर आएगा। ठीक है ना, तो बी सेट में जो भी एलिमेंट्स रहेगा सब एलिमेंट्स का बराबर का एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पे आएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेगा, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट बी, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। अब इसको अगर हम लोग एक मैट्रिक्स टेबल में ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए ए सेट का ऊपर में है, तो ये ए का एलिमेंट क्या है, 1 2 3, यहाँ पे भी ए का एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3। तो हम लोग को ये जो 9 बॉक्स मिलेगा, ये 9 बॉक्स अगर हम लोग अच्छा से ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग को ये जो 9 बॉक्स मिला है, ये कौन सा बाकी समय 0 आएगा, जो सेम एलिमेंट है ना 1 1, इसमें 1 आएगा, यानी कि ये एलिमेंट वो रिलेशन में रहेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से जाएंगे और इस तरह से आएंगे, तो इसका होगा 1 2, तो यहाँ पे 0 आएगा, यानी कि ये एलिमेंट जो होगा ये आइडेंटिटी रिलेशन का पार्ट नहीं है। 1 3 ये भी नहीं है, क्योंकि जो बराबर आएगा वही होगा। 2 है, 2 1 ये 0 होगा, 2 2 क्योंकि ये जो पार्ट होगा इसमें 1 आएगा। क्यों, क्योंकि ये बॉक्स में क्या आ रहा है, सेम एलिमेंट आ रहा है। 2 3 0, 3 1 0, 3 2 0, 3 3 1। तो इसमें अगर देखा जाए तो डायगोनली जो भी बॉक्स मिलेगा उसमें 1 1 आएगा, अदर सब में क्या होगा, 0 होगा। जो 1 है इस बॉक्स का मीनिंग क्या है, कि वो एलिमेंट क्या है जिसे 1 1 होगा, ये ऑर्डर पेयर क्या पे है, वो आइडेंटिटी रिलेशन में है। इसी तरह से अगर हम लोग निकालेंगे ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी, तो हम लोग को यहाँ पे भी इस तरह से मिलेगा, ए 1 होगा, ए बी 0, एस सी 0, बी ए 0, बी बी 1, बी बी 1, बी सी 0, देन सी ए 0, सी बी 0, सी सी 1। ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स टेबल ड्रॉ करने अगर आता है तो आप लोग को इस तरह से करना है। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, क्या आप लोग को समझ में आया है। आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए बोला है, यानी कि ए में जो भी एलिमेंट्स है ना, 1 1 1 है, 2 है, 3 है, तो इसमें 1 के लिए 1 1 आना पड़ेगा, 2 है तो 2 2 आना पड़ेगा, 3 है तो 3 3 आना पड़ेगा। अगर 1 2 3 के अलावा और भी कुछ एलिमेंट होता तो उसका भी सेम कंपोनेंट का यहाँ पे एलिमेंट आता। अगर है तो इसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन कहेगा, है ना। तो दिस इज द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए एंड बी। देन यू हैव कांस्टेंट रिलेशन। कांस्टेंट रिलेशन क्या है, अभी एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए ये एक रिलेशन है आर, जो कि है 1a 2a 3a। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी वेदर इट विल बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी और नॉट। क्या ये ए टू बी एक रिलेशन है, यानी कि ये जो है ये ए क्रॉस बी का एक सबसेट होना पड़ेगा, यानी ये जो एलिमेंट्स है ए क्रॉस बी में होना पड़ेगा। 1a 2a 3a, 1a है यस, 2a है यस, 3a है यस, यानी कि ये जो भी 3 एलिमेंट्स है, ये तीनों एलिमेंट्स कहाँ का है, ए क्रॉस बी का ही एलिमेंट्स है, यानी कि आर एक क्या हो गया, ए क्रॉस बी का एक सबसेट हो गया, और ए क्रॉस बी का ये एक सबसेट है, यानी कि ये एक क्या है, रिलेशन है। अब ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में अगर हम लोग डोमेन निकालता है, डोमेन ऑफ आर, तो हम लोग को क्या मिल रहा है 1 2 3, और रेंज अगर हम लोग निकालते हैं तो इसमें हम लोग को सिर्फ क्या मिल रहा है, ए। ये एक क्या है, सिंगलेटन सेट है, जिसका एक ही सिर्फ एलिमेंट है। ओके, तो इसका अगर हम लोग एरो डायग्राम बनाएंगे, तो ये जो मेरा सेट है ए, और ये जो सेट है मेरा बी, 1 2 3, ये मेरा क्या है, ए सेट का ही डोमेन है। ठीक है ना, तो ये मेरा डोमेन भी है, ये मेरा डोमेन ऑफ आर भी है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि
मान लीजिए ये यहाँ पे 3A नहीं है, यहाँ पे 3A नहीं है, तो मेरा डोमेन कौन सा होगा? ये 1 और 2 जो है ये मेरा डोमेन का होगा, 3 बाहर में होगा, ये मेरा क्या होगा? डोमेन ऑफ आर। क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? डोमेन ऑफ आर में क्या आएगा इस टाइम? ये आएगा 1 और 2 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट 1 और 2 ही है, तो 1 2 3 ए का पार्ट था, लेकिन ए का ही एक सबसेट होगा डोमेन जिसका 1 2 आ रहा है। ये क्या यहाँ पे ए बी सी तीनों पर था, लेकिन ये 1 भी ए के साथ रिलेटेड है और 2 भी ए के साथ रिलेटेड है। ये जो मेरा ये है, ये क्या है? रेंज ऑफ आर है। यानी यहाँ से जो भी जा रहा है एक ही एलिमेंट का साथ, बी का एक ही एलिमेंट का साथ रिलेटेड है। तो इस तरह का अगर जो रेंज है, ये अगर एक सिंगुलेटन सेट होगा, यानी कि रिलेशन आर का हर एक एलिमेंट जो है फर्स्ट कंपोनेंट वो सेकेंड सेट का सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, तो इस तरह का रिलेशन को हम लोग क्या कहता है? कांस्टेंट रिलेशन कहता है। दिस रिलेशन इज सेड टू बी ए कांस्टेंट रिलेशन इफ द range of the relation is a singleton set and all the elements of the domain are related with the that single element in the range. Okay, यहाँ पे 3 भी आ सकता है, तो हम लोग यहाँ पे अगर 3 दे देंगे तो ये पूरा R ही डोमेन हो जाएगा, ये पूरा सेट A ही डोमेन हो जाएगा, तो 3 भी क्या होगा? A का साथ ही आएगा। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे 3A लिख देते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग 3A लिख देते हैं तो 1 2 3 सब किसके साथ रिलेटेड है? A के साथ। यहाँ से अगर यहाँ पे अगर कोई भी एक आ जाता है 1B के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा? ये कांस्टेंट रिलेशन नहीं रहा, क्योंकि यहाँ 1B आ गया, यानी कि 1 जो है ये 2B का साथ में भी क्या हो गया? 1B का साथ में भी रिलेटेड है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? B आ जाएगा रेंज में। तो रेंज में हमेशा क्या होगा? एक सिंगलेटन सेट रहेगा, यानी कि ये हमेशा यहाँ से क्या होगा? एक ही एलिमेंट का साथ ये लिंक होगा। इस तरह का सेट अगर रिलेशन होगा तो इसको हम लोग कांस्टेंट रिलेशन कहेगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर दो रिलेशन है, R1 है और R2 है, तो मान लीजिए इसके एलिमेंट्स क्या है? 1A 2A और 3A। दोनों का एलिमेंट्स क्या है? बराबर है। दोनों एलिमेंट्स क्या है? बराबर है। दोनों रिलेशन का एलिमेंट्स बराबर है, तो R1 क्या हो गया? R1 इक्वल टू R2। कैसे? क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट सेम सेम है, यानी कि R1 जो है ये सबसेट हो गया R2 का और R2 सबसेट हो गया R1 का। क्योंकि ये रिलेशन भी एक सेट ही है, तो ये क्या है? दोनों इन दिस केस क्या होगा? ये बराबर रहेगा। यानी कि अगर हम लोग R1 का डोमेन लिखेंगे, डोमेन ऑफ R1 इक्वल टू डोमेन ऑफ R2 एंड रेंज ऑफ R1 इक्वल टू रेंज ऑफ R2। ये दोनों सेट, दोनों रिलेशन जो है, ये दोनों रिलेशन को हम लोग क्या कहेगा? इक्वल कहा जाएगा। अगर R1 रिलेशन का जो डोमेन है ये R2 रिलेशन का डोमेन का साथ इक्वल है, दोनों सेट है लेकिन इक्वल है, यानी कि दोनों बराबर सेट है। और R1 का रेंज जो है वो R2 का रेंज का बराबर है, यानी कि सेकंड कंपोनेंट भी सेम सेम है दोनों सेट रिलेशन का, फर्स्ट कंपोनेंट भी सेम सेम है। और साथ ही साथ इसमें क्या आ रहा है कि मान लीजिए कोई भी एक एलिमेंट है x का, मान लीजिए ये R1 जो है रिलेशन फ्रॉम A टू B है, तो x बिलोंग्स टू A के लिए जो R1 का x वैल्यू आएगा, ठीक है, वो R2 के x के लिए भी क्या होना पड़ेगा? सेम आना पड़ेगा। ठीक है ना? यानी कोई भी एक एलिमेंट, जैसे यहाँ पे 1 क्या किसके साथ रिलेटेड है? A के साथ में रिलेटेड है, तो यहाँ पे भी 1 A का साथ ही रिलेटेड होना पड़ेगा। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर हम लोग देंगे तो मान लीजिए R क्या है? x प्लस 1। A एक सेट है 1 2 3, एक सेट है 1 2 3। अभी R रिलेशन में यहाँ पे हम लोग लिख रहा है इस तरह से, R1 क्या है? x y सच दैट x प्लस y इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू से 2 दे दिया। ओके, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ऐसे ए तक का हम लोग का रिलेशन है। R1 इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू A। नाउ R1 में कौन सा एलिमेंट आएगा? हम लोगों ने बोल दिया R1 में रिलेशन आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 2 अगर होगा तो ही आएगा। तो R1 में क्या क्या एलिमेंट्स आएगा? इसे कौन सा ऑर्डर पे आएगा? जिसका सम 2 होगा। 1 1 कर देंगे तो हम लोग को क्या आएगा? इसके अलावा क्या और भी ऐसा एलिमेंट है जिसका सम करने से हम लोग को क्या मिलेगा? 2 मिलेगा? नहीं। इसका एलिमेंट कितना आएगा? 1 1 1 2 1 3। इसमें बहुत सारा एक्रॉस ए में क्या आएगा? एक्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स मिलेगा।
1 1 मिलेगा, 1 2 मिलेगा, 1 3 मिलेगा, इस तरह से 2 1 2 2 2 3। लेकिन हमको ऐसा ऑर्डर पे लेना है जहाँ पे दोनों का कंपोनेंट को प्लस करने से 2 मिलता है। ठीक है, मान लीजिए हम लोग इसमें 3 दे दिया, इसमें क्या दे दिया, 3 दे दिया, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 1 2 मिला है हम लोग को, 1 2 3 होता है। और यहाँ पे 2 1 भी आएगा, तो 2 1 भी क्या होगा, 3 1 होगा, 2 1 भी क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये एक रिलेशन मिला है। तो R2 भी ऐसा होगा। यहाँ पे 1 के लिए हम लोग को क्या मिला है, 2 मिला है ना, 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 1, है ना। तो यहाँ पे R1 अगर x निकलेगा, यानी कि R1 x के लिए, ठीक है, या हम लोग इस तरह से दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, x एक्स वाई सच दैट x इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई अगर दे दिया, तो यहाँ पे x के लिए अगर वैल्यू लेते हैं हम लोग 1, यहाँ पे R1 के लिए अगर 1 वैल्यू लेता है x के वैल्यू, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, R2 के लिए भी क्या आना पड़ेगा, R2 के लिए भी 1 के लिए 1 ही आना पड़ेगा। ठीक है, 1 मतलब ये क्या कह रहा है कि R1 में अगर x हम लोग डालते हैं, मान लीजिए इस तरह से हम लोग को पहले मिला हुआ था ना कि f ऑफ x इक्वल मान लीजिए कि x प्लस 1 है, तो अगर f ऑफ 1 आता है तो f ऑफ 1 में कितना आएगा, 1 प्लस 1 आएगा, यानी कि 2 आएगा। तो एक रिलेशन अगर R1 ऑफ x है जो कि x प्लस 1 समझाता है, और R2 जो है ये भी अगर इक्वल होना है, R1 R2 अगर इक्वल होना है तो ये भी x प्लस 1 ही होना पड़ेगा। यानी कि अगर हम लोग R2 का 1 का वैल्यू निकालता है तो ये भी 1 प्लस 1 2 ही आना पड़ेगा। तो जाके क्या कहेगा, हम लोग R1 को R2 का इक्वल कहेगा। दो रिलेशन इक्वल तभी होगा जब दोनों रिलेशन का डोमेन इक्वल होगा और रेंज इक्वल होगा। साथ ही साथ कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कोई भी एक एलिमेंट जो कि ए का एक पार्ट है, मान लीजिए R इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, तो ए का कोई भी एक एलिमेंट के लिए अगर हम लोग को जो वैल्यू मिलता है, यानी कि एफ एक रिलेशन है, R1 R से कंफ्यूजन हो सकता है आप लोग का, तो एफ और जी हम लोग को इस तरह से मिला हुआ है ना, एफ और जी मान लीजिए दो रिलेशन है, तो एफ ऑफ एक्स जो वैल्यू देगा वो वैल्यू जी ऑफ एक्स का भी बराबर होना पड़ेगा। तो एफ और जी जो रिलेशन होगा ना, ये दोनों रिलेशन को हम लोग क्या कहेगा, एफ इक्वल टू जी कहेगा। साथ ही साथ डोमेन ऑफ एफ जो होगा, ये डोमेन ऑफ क्या होगा, जी होगा, और डोमेन ऑफ रेंज ऑफ एफ जो होगा, रेंज ऑफ एफ जो होगा, ये रेंज ऑफ जी का बराबर होना पड़ेगा। ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तो जाके हम लोग क्या कहेगा, दोनों रिलेशंस को इक्वल कह सकता हूं। ठीक है ना, टू रिलेशंस विल बी इक्वल if their domain and ranges are equal at the same time for any value of x where x belongs to the set A, then f of x should be equal to g of x, where f and g are two different relations. So for any particular value of x, if the two relations are giving me the same result, then in that case the two relations are said to be equal. I hope these things are clear to you. So today we have taken all these concept: null relation, universal relation, inverse relation, identity relation, constant relation, and equality of relations. So if you have understood the things clearly, then we will proceed to the exercise questions. Okay, and we will discuss all the questions here, and some questions will be there as homework. You have to try it at home. Okay, thank you very much.